माय एमिरेट्स का फॉर्म इन दिनों कुछ अलग ही रंग में है। शुक्रवार रात शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ मैन इन ब्लू का जलवा देखने लायक था। खेल के हर डिपार्टमेंट में उनकी महारत ने लीग टेबल के शिखर पर उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत कर दी। ऊंचे इरादे लिए पुरन के जाबाज आज सामना करेंगे डेजर्ट वाइपर्स का, जिन्होंने कल ही गल्फ जायंट्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और ILT20 में अपनी पकड़ बनाए रखी। पिछली बार जब इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब मुकाबला आखिरी गेंद तक खींचा था। क्या आज फिर एक बार इतिहास दोहराया जाएगा? वो तो वक्त बताएगा। यह DP वर्ल्ड ILT20 का मैच नंबर 21, जहां माय एमिरेट्स भिड़ेंगे डेजर्ट वाइपर्स से अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालें। यह टेबल टॉपर्स माय एमिरेट्स का मुकाबला डेजर्ट वाइपर्स के साथ, जो कि तीसरे पायदान पर है। अब माय एमिरेट्स के नेट रन रेट पे एक बार गौर फरमाइएगा। 2.13 का नेट रन रेट सबसे आगे एंड दी ओनली नेट रन रेट इन पॉजिटिव। ये दोनों टीम्स आ चुकी हैं अबू धाबी में। माय एमिरेट्स अपने पिछले मुकाबले में शारजाह वॉरियर्स को ध्वस्त करके आ रहे हैं। आपको दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट और साथ ही साथ आपको बता दें कि कप्तान निकोलस पुरन। पिछले मुकाबले में उन्होंने 24 रन बनाए थे सिर्फ 9 गेंदों पर। दूसरी तरफ डेजर्ट वाइपर्स भी अपने पिछले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस गल्फ जायंट्स को हरा कर आ रही है। आजम खान ने फास्टेस्ट 50 दर्ज किया। इनके जो कप्तान है कॉलिन मुनरो, उन्होंने भी अर्धशतक बनाया। चलिए दोनों कप्तान रेडी हैं। नैटली जमानोस के साथ चलते हैं सीधा टॉस की ओर। It's first place, My Emirates, taking on the Desert Vipers here in windy Abu Dhabi. At the toss, we of course have got the two captains, Colin Munro and Nicholas Pooran, and alongside the match, referee Roshan Mohanama, and the toss representative today, Unnati Shivraj. It's Nicholas Pooran has got the coin. Heads. Heads is the call. Heads is the call. It is heads. And it is a heads. Colin, you win the toss. What are you going to do and why? I always get asked that. I'm not too sure. I think it's the way to go in T20 cricket these days. But yeah, it looks a little bit drier than the wicket that we played the Night Riders on. But again, chasing, it's always nice to know what you're going to go out there and do, especially with our all-rounders through the middle. So yeah, we've obviously got to bowl well and put them under pressure. Game yesterday, coming into Abu Dhabi, how's the team feeling? Yeah, I think a lot better spirits. I think we played more of a complete game, if that's something that we're striving towards. Still bits and pieces to learn and to grow from that game, but I think we were in control large periods of that game last night. Just trying to maybe finish off the bowling innings better, and hopefully we've learned that and can come today and put on a better performance. You've had quite a lot going on, obviously, a lot of games quite close together, change of personnel as well, coming in and out. How do you keep the team motivated then? Oh, I just think take the opportunity when it comes, stay nice and fresh. We haven't trained obviously over the last 6 or 7 days because of the tight schedule. It's not just us, every team's got to do it, and in these tournaments. But I think it's guys coming out and just trying to enjoy themselves and play for the team and take a bit of ownership and make sure that whatever they're doing, they're just thinking the team first. Sometimes it's when somebody's coming in for 3 or 4 games, they can think about their own performance a little bit more than the team. But the guys that have come in have been outstanding and put their best foot forward for us. Good luck, play well. Thank you. Cheers, bro. Good luck. I think you're going to have a bat first. It is a day game as well. So does that change your preparation at all? It doesn't. I think we just have to assess as batsmen as fast as possible and communicate. In terms of your team, you're in a very good position at the moment. How important is it to keep winning? Very important. In T20 cricket, it's a game of momentum, and gaining momentum in the right time in tournaments like this is very important. So we just want to continue to do the right things, continue to respect this game, and do what we have to do. Very windy today, and a little bit difficult maybe in terms of conditions. What do you think about the conditions and what you might see from the pitch? Yeah, it's definitely windy. The pitch, I'm no expert on pitches, but it looks like a good wicket. So hopefully we can get a couple partnerships in there, get something respectable, and try to use the conditions in our favour, trying to defend whatever total we make. Enjoy the game. Good luck. Thank you. So the news then from the toss is that the Desert Vipers have won the toss, and they say they'll have a bowl first. जी हाँ, कॉलिन मनरो ने पहले चेस करने का इरादा जाहिर किया है और उस तरीके का ट्रेंड भी रहा है इस ग्राउंड पर, लेकिन ADKR ने कल रात को इस ट्रेंड को बदला। अब शो में बहुत कुछ है, आपको दिखा दें किस किस चीज़ों पर आपकी होनी चाहिए नजर। क्या वाइपर्स में है माय एमिरेट्स को लगातार दूसरी बार हराने का दम? ट्रेंट बोल्ट से होंगे रूबरू और जानेंगे उनके पैशन के बारे में, और टेबल टॉपर्स की इस फिरकी जोड़ी की अहमियत के बारे में भी होगी चर्चा।
बहुत कुछ है बात करने को। पहला मुकाबला है आज दिन का, डबल हेडर संडे है। मेरे साथ है निखिल चोपड़ा, साथ ही साथ विवेक राजदान। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। Good afternoon. लुकिंग शार्प As always. as always, as sharp as the day is. Just like a wow. Just like a wow. देखिए मेरे ख्याल से ना आज के मैच का एक अंडरटोन है। अंडरटोन है रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। क्योंकि विवेक आपको याद ही होगा जब पिछली बार ये दोनों भिड़े थे तो क्या हुआ था, आखिरी गेम तक गया था ये मुकाबला। तो आप फिर उम्मीद कर रही हैं उसी तरह से कुछ जी, मैं मुकाबला तो कर होगा, रही लेकिन अगर ऐसा मुकाबला आज हुआ ना तो जो निर्णय है, परिणाम है, वो उल्टा होने वाला है आज। जी, क्योंकि आज शाहीन शाह अफरीदी है नहीं, लेकिन वो आपको तो याद ही होगा शाहीन शाह अफरीदी के वो 3 रन आखिरी गेंद पर, ट्रेंट बोल्ट की गेंद। जी, अंतिम गेंद और थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिला था। और अच्छी बात यह है कि अंत में आके उन्होंने डाइव मार के वो अपना विकेट तो बचाया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण वो पॉइंट्स थे। ज़्यादा बड़ा टोटल चेस नहीं कर रहे थे, लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से माय एमिरेट्स उस मुकाबले में भी दुबई का वो मैदान, जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जो ट्रेंड चल रहा था वो लगभग तोड़ दिया था कि आप एक ज़्यादा बड़े टोटल को डिफेंड जो है वो कर पाएंगे। लेकिन शाहीन अफरीदी वो अंतिम गेंद पे वो 3 रन, बड़ा ही क्लोज मुकाबला था। जी, लेकिन आज के मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी है नहीं, वो लौट गए हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर रहेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे उस पर्टिकुलर मैच के वो। और मोहम्मद आमिर के बारे में एक खास बात ये है कि अगर उनको चौका छक्का लग गया तो उनकी कमबैक डिलीवरी कमाल की होती है। ये खास बात रहती है किसी भी एक खिलाड़ी के लिए बतौर गेंदबाज कि वो कमबैक डिलीवरी किस तरीके से रहती है। कल भी जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे थे, चौका खाया, छक्का खाया, फिर तुरंत आके उनको पता था कि कहाँ पे सुधार करना है या मेरे फील्ड कहाँ है, मैं अपनी फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करूंगा। फील्डर के सर के ऊपर तो छक्का चला जाए वो अच्छा शॉट है, ये फॉर्मेट ही 120 गेंदों का जो फॉर्मेट है ऐसा ही फॉर्मेट है, लेकिन बतौर गेंदबाज आपकी सोच के साथ वो अगली गेंद डाल रहे हैं वो ज़रूरी है। जी, मोहम्मद आमिर तो आपको नजर आएंगे, लेकिन बता दें आज का जो मैच है, मुकाबला है, वो पिच नंबर 5 पर हो रहा है। और अजय मेहरा हमें बता रहे हैं कि किस तरीके की सतह है और क्या गेंदबाजों को मदद मिलेगी। मैच नंबर 21 के लिए हम तैयार हैं और जी हाँ, आज एक अलग सतह का प्रयोग कर रहा है। कल शाम को जो मुकाबला हुआ था वो पिच नंबर 7 थी, ये पिच नंबर 5 है। आज धूप खिली हुई है, पर एक चीज है कि हवा चल रही है और मेरी बाईं तरफ की जो बाउंड्री है वो छोटी बाउंड्री है 63 मीटर की, जो मेरी दाहिने तरफ है 69 मीटर की और सामने की तरफ 76 मीटर की। तो विद द विंड, क्योंकि हवा इस तरफ चल रही है, वो जो एरिया है वो बल्लेबाज टारगेट करेंगे। सतह कैसी है? बहुत बढ़िया। इस सतह पे 66% विकेटें सीमर्स ने ली है, क्योंकि घास की परत है। और जैसे मैं नीचे जाता हूं और देखता हूं, आज काफी सूखी भी नजर आ रही है और बहुत ठोस भी है। बहुत बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी के लिए। मोहम्मद वसीम जैसा बल्लेबाज, उसको मजा आने वाला है। ऑन द राइज आप खेल सकते हैं, उनको पहले भी हमने देखा, थ्रू द लाइन आप खेल सकते हैं। बड़ी विकेट है। तेज गेंदबाजों को जितनी गेंद आगे रखेंगे, नई गेंद का खासकर, उनको वो मदद मिलेगी, वो स्विंग मिलेगी। पर ओवरऑल एक बहुत बढ़िया सतह इस मुकाबले के लिए। बल्लेबाजों को मदद मिलेगी और सीमर्स को मदद मिलेगी, लेकिन माय एमिरेट्स के पास है सबसे इफेक्टिव स्पिन जोड़ी, अकील हुसैन साथ ही साथ सलाम खेल। कितने कारगर साबित हो सकते हैं? उन्होंने देखिए गेंदबाजी किस तरह की है, पहले थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल रखते हैं वो, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। वेरिएशंस उनके पास हैं और वेरिएशंस हैं उनके पास गति का वेरिएशन, जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और सलाम खेल की तो खास तौर पे इसलिए भी तारीफ की जाएगी क्योंकि जो भी खिलाड़ी इनको स्वीप मारने जाता है ना, वो फंस जाता है। क्योंकि आप इनको हाथ से अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऑफ द विकेट पढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको लगता है ये लेग स्पिन कर रहे हैं गेंदबाजी, लेकिन इनकी गुगली जो है वो उतनी ही इफेक्टिव है। तो इसलिए इनके हाथ से जब गेंद छूटती है, अगर उस वक्त आपने मन नहीं बनाया कि क्या करना है और वो अंदाजा सही नहीं हुआ, तो ऑफ द विकेट ये बहुत तकलीफ देते हैं। जी निखिल, एक फिंगर स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है, दोनों अलग अलग कैसे इस पिच को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? देखिए रिद्धिमा, मजे की बात यह जिस तरीके से कप्तान निकोलस पूरन अकील हुसैन का इस्तेमाल कर रहे हैं फिंगर स्पिनर, क्योंकि पास उनकी इतना अच्छा कंट्रोल है, वो नया गेंद से पावरप्ले में गेंदबाजी करते हैं। वो थोड़ा सा ठहराव डालने को कोशिश करते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। स्पिन के साथ साथ उनके पास एक वो खतरनाक आर्म बॉल है, जो बॉल वो स्विंग करा लेते हैं। और सलाम खेल की बात की, जो अगर शुरुआत में प्रेशर रहता है, बतौर रिस्ट स्पिनर अच्छी वो लाइन, वो लेंथ, वो प्रेशर जो है ना बरकरार रखते हैं और विकेट चटकाते हैं। राजीव भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि जिस तरीके से वो मिश्रण से गेंदबाजी करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट एक स्पिनर के लिए भैया टप्पा जो है ना, वो रोजी रोटी है। उनका टप्पा बहुत लाजवाब है, तो वो विकेट चटकाते हैं आपको बीच के समय में, 7 से 15 ओवर के बीच में। जी, विकेट चटकाने की बात की और यहाँ पे अजय मेहरा ने बोला कि सीमर्स जो के है बहुत कारगर साबित होंगे, तो आपके नाम में, आपके जहन में एक नाम जरूर आएगा, ट्रेंट बोल्ट। और उनको ये पिछला मुकाबला तो याद ही होगा, उसे भूलेंगे नहीं। वैसे हमने उनको और करीब से जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्रिकेट के अलावा उनके पैशंस क्या क्या हैं। आइए आपको दिखाएं।
Trent Boult is hardworking but very relaxed, competitive but goes with the flow, and loves his cricket very much. एक्सपीरियंस है और गति भी ट्रेंट बोल्ट के पास। वहाँ विकेट का मौका और ये बहुत ही बढ़िया कैच। Speed. I am getting older, but yeah, I've enjoyed my time so far in the tournament. I've played a lot of cricket in this part of the world, so I'm becoming even more and more familiar with the conditions. But I think the standard and the quality has gone up even further from last season, so it's been exciting to be a part of it. I played a lot of cricket at Abu Dhabi Stadium. It's a great stadium. The conditions change across the time of the year, and obviously being in the middle of winter, I think it's been helpful towards the seam bowling, which is exciting. Generally there's a bit of wind there that offers, you know, an opportunity to get hit into the wind or get hit downwind. So some good challenges, but it's always been a place I've enjoyed bowling and got some great memories there. I'll tell you one thing I've learnt from this tournament and probably taken motivation from is getting alongside DJ Bravo, who is a guy that's played 600 T20 games. It's a lot of cricket. It's motivational, it's inspirational. And although I've played a lot of cricket, I still want to get better and try to learn new skills. So it's been good opportunities in that regard, but yeah, there's games every second day. You've got to be fit, you've got to be doing the right things off the field in terms of refreshing and making sure your body's good, because once the first ball is bowled, it's all on. So it's a challenge that I love, and I've definitely been loving the tournament so far. मिस टाइम हुआ है भाई, वाह, सुपरमैन! Yeah, a little bit of, how do you say, surprise sometimes when things stick one-handed, but yeah, we do a lot of training, a lot of catching. You catch a lot of balls throughout the week, and yeah, when it just goes up in the air like that in the game, things just take over, and it's always a great feeling when they stick. There was one when I hit the ground quite hard and thought I'd hurt my back, and then Bravo jumped on me, and Bravo's not the smallest man in the team, so I thought it might have been him jumping on me. Yeah, batting is a big thing of enjoyment for me. I like to go out there and have fun. Same thing with the catching. I'm very surprised if it sticks one-handed, but I'm more surprised if I swing and connect and somehow seem to put one into the stands. So I've been lucky enough for the last couple of seasons to hit a couple of sixes, but yeah, I wouldn't class myself quite the all-rounder yet. मैं तो पहले ही आंसर में अटक गई। ट्रेंट बोल्ट एंड रिलैक्स्ड, ये दो शब्द एक साथ जाती नहीं है। मैं बताती हूँ रिलैक्स क्या है। आज का दिन रिलैक्स है, निकोलस पूरन रिलैक्स्ड है, कॉलिन मनरो रिलैक्स्ड है, निखिल चोपड़ा रिलैक्स्ड है क्योंकि अपने गोल्फ स्विंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ कैमरा। लेकिन विवेक, ट्रेंट बोल्ट एंड रिलैक्स्ड नहीं जी, होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए रिलैक्स? और ये कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और ट्रेंट बोल्ट कुछ इसी तरह के खिलाड़ी हैं। इतने महान गेंदबाज हैं। अगर आप बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की बात करें, इस वक्त विश्व क्रिकेट में अगर आप देखें तो एक जाना पहचाना नाम है ट्रेंट बोल्ट। उसके बावजूद इनकी सादगी देखिए, किस तरह से पांव इनके हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये एक टीम मैन है। और जब भी कोई खिलाड़ी इतना बड़ा होने के बावजूद इस तरह की भावनाओं के साथ मैदान में उतरता है ना, तो वो बिल्कुल खास खिलाड़ी हो जाता है। जी, एक और खिलाड़ी है जिनका हुनर जो है, उनका बोलबाला रहा है इस डीबी वर्ल्ड T20 में। उनका नाम है आजम खान। उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू क्रिकेट सफारी। आपको बता दूं अब तक क्या हुआ है। टॉस जीतकर डेजर्ट वाइपर्स ने पहले गेंदबाजी का चयन किया। उस तरीके का ट्रेंड रहा है शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में, यानी आपको बल्ले के साथ माय एमिरेट्स के ओपनर्स जो कि कमाल के फॉर्म में वो नजर आएंगे। मोहम्मद वसीम और कुशल पेरेरा की पार्टनरशिप आज क्या रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। माय एमिरेट्स ने अपने खेमे में कोई चेंजेस नहीं किए, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए, यानी आंड्रे फ्लेचर, निकोलस पूरन, ये सब आपको नजर आएंगे। और जैसा कि अजय मेहरा ने बोला, ये पिच जो है बल्लेबाजों का साथ देगी भी। दूसरी तरफ डेजर्ट वाइपर्स ने एक चेंज किया है, जहां पे टाइमल मिल्स नहीं है और नेथन साउटा आए हैं उनकी जगह। तो सिर्फ एक चेंज है डेजर्ट वाइपर्स के खेमे में। आपको बता दें कि पिछले गेम में भी शाहिन शाह अफरीदी नहीं थे। अब गेंदबाजी की बात करते हैं पहले डेजर्ट वाइपर्स की, किस तरीके की नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास मोहम्मद आफिर है, उसके बाद हसरंगा भी है। हसरंगा तो कल भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। जो दबाव
मोहम्मद आमिर डाल रहे हैं शुरुआत से नया बॉल। लूक वुड को ना भूलें, लूक वुड जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी नहीं है तो दोनों छोर से अगर दोनों लेफ्ट आर्म पेसर डालेंगे वो बड़ा फ़र्क डालेंगे। आज टाइवन मिल्स की आपने बात की, उनको रेस्ट दिया क्योंकि कल भी वो शाम को खेले थे। आज शायद नेथन साउदर, वो भी इंग्लैंड के हैं, तेज़ गति के गेंदबाज, उनको देखेंगे गेंदबाजी करते हुए। लेकिन एक परीक्षा रहेगी क्योंकि आपने कहा कुशल पेरेरा, मोहम्मद वसी अब तक इस सीज़न भी इस प्रतियोगिता में सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी है जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बल्लेबाजी की बात करें तो उनके पास है आजम खान, और आप हुनर की बात कर रहे थे वे, कितना ज्यादा हुनर है इस आदमी में। आपने आजम खान के पिताजी को बल्लेबाजी करते देखा था, मोइन खान को। 1992 का विश्व कप अगर किसी को याद हो तो अंत में आके जो मोइन ने पारी खेली थी वहां पे और पाकिस्तान ने वो सेमीफाइनल जीता था ऑकलैंड में, तो कहते हैं ना कि पिता पर पूछ नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये आजम खान के पिता में जो हुनर था उसकी कहीं ना कहीं वो छवि जो है इनमें नजर आनी अभी शुरू हुई है। तो मोइन खान थे, अब आजम खान है, और वो शॉट जो है ना तेज गेंदबाज के विरुद्ध, वो घुटना टेक के, मुझे आज भी याद है ऑकलैंड में मोइन खान ने एक छक्का लगाया था उस सेमीफाइनल मैच में, और आजम खान के पास भी सुना है वो हुनर है जी। वैसे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ क्योंकि मैं पैदा नहीं हुई थी उस टाइम। हमने गेंदबाजी की थी, हांगकांग सिक्सेस याद है। चलिए, इससे साथ साथ इनकी उम्र का थोड़ा सा अंदाजा लग गया। लेकिन व्हाट यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम आजम खान, बिकॉज विकेट के पीछे भी जिस तरीके की वो फुर्ती दिखाते हैं, यू कांट एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, लेकिन कर रहे हैं वो बार बार। नहीं, जरूर, बिकॉज वो जब मैदान में उतरता है ना, वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो भूख नज़र आती है। जिस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, बॉलर्स के साथ बातचीत करते रहते हैं कि बॉल आगे गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन हमेशा नज़र आता है। और बल्लेबाजी में कल के मुकाबले से पहले वो रिद्धिमा 25 रन, 28 रन, 15 रन, वो खतरनाक आजम खान नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने बल्लेबाजी की, सबसे तेज़ वो अर्धशतक लगाया 18 गेंदों में, वहाँ से गाड़ी मुझे लगता है पटरी पे, और आपको और वो खतरनाक आजम खान नजर आएगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच विनर है जी। आजम खान के अलावा आप उनके बल्लेबाजी की ओर से किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कॉलिन मुनरो को और एलेक्स हेल्स को, इन दोनों को एक अलग भूमिका निभानी जरूर है। कॉलिन मुनरो रन जरूर बना रहे हैं, लेकिन मुझे उनका रन रेट और बेहतर चाहिए, क्योंकि अगर ऊपरी क्रम में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, एलेक्स हेल्स नहीं चल रहे हैं, और कॉलिन मुनरो अगर 100 या 110 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे तो वो इतना फायदा नहीं पहुंचेगा। तो एलेक्स हेल और कॉलिन मुनरो, इनमें से एक को रन भी बनाने हैं और उसको रफ्तार से बनाने हैं, तभी इस टीम को फायदा पहुंचेगा। तो कौन जीत रहा है, किसका पड़ रहा भारी है? मेरे लिए तो माय एमिरेट्स में कहूंगा। माय एमिरेट्स आपके लिए एक? यार मैंने सोचा था दोनों अलग अलग कहेंगे, दोनों का एक ही हो गया। यार माय एमिरेट्स के साथ दिक्कत पता क्या है, वो दोस्त हमारे जो है ना, आपने सोच तो लिया कि भाई यहाँ पे रनों का पीछा करके आप जीतते हैं, लेकिन माय एमिरेट्स ने अगर 200 लगा दिए तो क्या करोगे? वो तो हमें वक्त बताएगा। देखते हैं कि क्या डेजर्ट वाइपर्स एक बार फिर ध्वस्त करेंगे माय एमिरेट्स को, या माय एमिरेट्स करेंगे कमबैक। चलते हैं लाइव एक्शन की ओर।